Okay, let's start. We'll continue with our topic. In last session we have studied about motion, kinematics, displacement, distance, velocity, speed and acceleration. These 5 things we'll study. So now velocity. थोड़ा formula में देखते हैं और क्या क्या हम use कर सकते हैं. Velocity, as we know, what is velocity? Displacement by time. Now motion in one dimension. Suppose this is x-axis. This is definitely minus x-axis, this side. Okay, origin. Suppose at time t1, initially one object was here at position, let's say x1. After some time, now let's say time t2, after some time, let's say position is x2. So a particle went from here to here. Now what is velocity? Velocity is displacement by time. Here, what will be displacement? Displacement is final position minus initial position divided by time. What is time? Final time minus initial time. This also we can write. Velocity. Velocity, same formula. Tension वाली कोई बात नहीं. Same formula. Displacement by time. Now, x2 minus x1, we can write this like delta x by delta t. This delta means change. Delta x means change in position, delta t change in time. Change in position called displacement and displacement by time is velocity. So this is also formula for velocity. All are same formula only. बस representation का अलग अलग तरीका है. Sometimes यहाँ x की जगह हो सकता है y, z, r, s, even height. All will be displacement. Question में कैसा दिया है? Suppose motion is along y axis, so we'll write y. Z axis will write z. For position vector we'll write r. तो just ये symbol change हो यहाँ पे, meaning change नहीं हुआ, meaning same ही रहेगा, that this is displacement. So most of the time we use this formula also, sometimes this formula also, this formula also, depending on the situation. All are same formula. Basic आपको याद रखना है हमेशा. Formula रटने की कोई जरूरत नहीं है. Basic आपको हमेशा याद रहना चाहिए जो कि है velocity is displacement by time. That's all. These are different form of our formulas. Okay. So velocity, displacement को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. Clear? Velocity is delta x by delta t. Similarly, हमने पढ़ा था acceleration. Right here. Acceleration. What was the acceleration? Acceleration was change in velocity with respect to time. Change in velocity we can write. Let's see. v2 minus v1. Final velocity minus initial velocity is change in velocity. Time we can write t2 minus t1 or t. Same thing. Suppose here velocity v1, here velocity v2. Let's say v1 here, v2 here. So what will the acceleration? Change in velocity. Final velocity minus initial velocity by time. So acceleration we can write delta v. Delta v, change in velocity by delta t, time. We can write this also. Delta v by delta t, acceleration by time. Correction. Delta v by delta velocity by time is acceleration. We can write this also. Okay. So formula कैसे use करना है ये ज़्यादा जरूरी है. रट्टे मारने की जरूरत नहीं है. समझ में आना चाहिए. Clear? So acceleration is change in velocity by time. Meaning हमेशा same रहेगा. Change in velocity by time. हमने पढ़ा था क्या अभी कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. These both are vector. Okay. Okay. आगे बढ़ते हैं. आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे. सिंपल ही क्वेश्चन है पे. An object travels half of the time with the speed say 20 meter per second, half the time, and for the next half with the speed 30 meter per second for the next half along the straight line. Question same है. An object travels half of the time with speed 20 meters per second and for the next half time with a speed 30 meters per second along the straight line. Find average speed and average velocity. Find average speed and average velocity. Simple question है कि traveling first half time 20 meter per second, second half time 30 meter per second. Let's say v1, v2, two different speeds given. You have to find average speed and average velocity. Okay.
फर्स्ट लेट्स स्टार्ट एवरेज स्पीड. There is a word average. What is average? Average का मतलब होता है एक टोटल बाई टोटल, टोटल थिंग एवरेज. कैसे देखो, हमें तो सिर्फ स्पीड का एक ही फॉर्मूला पता है, स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम. If I tell total distance or total time, so total by total it will be average only, average speed. एक अभी हम नया वर्ड पढ़ेंगे आगे which is called instantaneous velocity or speed. Instantaneous means at the instant. Average, total. जब हम बाइक पे कहीं जाते हैं, कभी भी आपकी स्पीडोमीटर पे नजर पड़ेगी तो वहां पर एक आपको रीडिंग नजर आएगी. दिस विल बी instantaneous at that instant, which is the speed. यहाँ में क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड. सो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ डिस्टेंस और तो ऐसा कुछ देने रखा. ओके, सो स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. हमें तो ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, हमें क्या दिया है? सेम टाइम एंड वेलोसिटीज दे रखी है. अगर आप यहां से देखें, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला यहां से बन जाता है. डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? इधर मल्टीप्लाई में आ गया, स्पीड इनटू टाइम भी लिख सकते हैं. अभी हम स्पीड पढ़ रहे हैं इसलिए v को हम स्पीड ही पढ़ेंगे. मैंने बोला था सिंबल हम सेमी यूज करके लेंगे वेलोसिटी स्पीड का, ठीक है. तो v को हम स्पीड पढ़ेंगे. यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. कहां से कहां तक? यहां से यहां तक एवरेज स्पीड. अब समझिए, हाफ टाइम हाफ टाइम. लेट टोटल टाइम t मान लेता है. टोटल टाइम कितना लग रहा है? t लग रहा है टोटल टाइम, ठीक है. t मैं निकाल रहा हूं एवरेज स्पीड. एक ही स्टेप में निकाल देते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं एक ही स्टेप में. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? पहला डिस्टेंस प्लस दूसरा डिस्टेंस, ऐसे लिख दूं मैं. लेट्स से d1 प्लस d2, कितने का डिस्टेंस? कितने का डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम ने क्या लिया है भाई? t. ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम स्पीड. नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. तो पहला डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. देखिए, हाफ टाइम बोला है तो टोटल का हाफ टाइम लिया हमने, प्लस दूसरा डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम. व्हाट इज स्पीड इनटू टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम. अगर आप यहां से t/2 पूरा कॉमन ले लें तो यहां से देखिए क्या बचेगा? t/2 कॉमन आ गया, डिवाइड बाय t. इधर क्या है? 20 प्लस 30. अब फटाफट थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो t से t गया तो आपके पास क्या बच रहा है? 20 प्लस 30 बाई 2. 20 प्लस 30 बाई 2. t से t आप कैंसिल कर सकते हैं. दिस प्लस दिस बाई 2. दिस स्पीड प्लस स्पीड बाई 2 डिवाइड. एवरेज तो हम सिंपल ऐसे ही करते हैं ना, दो नंबर दे रखा हो जैसे 4 6, इनका एवरेज निकालिए 4 प्लस 6 बाई 2. सिमिलरली ये भी आ गया इनिशियल, दिस स्पीड प्लस दिस स्पीड बाई 2, 50 बाई 2, 25 मीटर पर सेकंड. दिस इज आवर एवरेज स्पीड. सिंपल, हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल गया? दिस प्लस दिस बाई 2. जब सीधा हमें पता ही है 2 करना है तो हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया ही क्यों? क्या जरूरत थी इसकी? हम डायरेक्टली निकाल लेते भाई दिस प्लस दिस बाई 2, हमारा तो आंसर वैसे भी आ रहा था. बट क्या जरूरत है इसकी? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पता लग जाएगा कि क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि हर जगह ये फॉर्मूला नहीं चलता है. क्यों नहीं चलता है देखते हैं. मेन है प्रोसेस. Process will remain same in every case. The formula, main formula will remain same in every case. Main formula is total distance by total time. Clear है? Total distance by total time. Simple approach था, हमने क्या निकाला? Average speed, which is 25 meter per second. Now, second solution क्या है? Average velocity. What will be the average velocity? अब जरा चेक करते हैं. What is average velocity? Velocity is displacement by time. Displacement by time meaning total displacement by total time. अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला है, क्या बोला गया है? In a straight line. यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो जितना डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा? उतना ही होगा. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सेम. टाइम तो सेम ही लग रहा है. इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इसको मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकता हूँ. टाइम भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी तो सेम ही होगा.
तो हमारा एवरेज वेलोसिटी भी कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड. मीनिंग इन दिस क्वेश्चन और जनरली बट वी कैन से in a straight line in one direction the average speed is equals to average velocity और speed is equals to velocity. So बहुत बार हम कभी बोल देते हैं speed, कभी बोलते हैं velocity, अंधाधुन बोल देते हैं speed, बोलते हैं velocity, बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम है. कब? जब हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी और स्पीड हमारी क्या है? सेम है. इसलिए दोनों आंसर क्या आ गया हमारे? सेम. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है? 25 मीटर पर सेकंड. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए t से t कैंसिल हो गया है. इसका मतलब कितना भी टाइम ले, कोई भी टाइम हो, कोई दिक्कत नहीं है. डिस्टेंस यहाँ पर कहीं आया ही नहीं है. डिस्टेंस d1 d2 हमने मान के लिया, फिर भी हमारा आंसर आएगा. कोई भी टाइम, कोई भी डिस्टेंस उस समय लेना ही नहीं है. क्वेश्चन में अगर मान लो आपको यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन हो तो उसका कुछ करना ही नहीं है. टाइम भी मेंशन हो उसका भी कुछ नहीं करना है. सिंपल. हाफ टाइम में गया है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? सिंपल 25. दिस प्लस दिस बाय 2. क्लियर है क्वेश्चन? सीधा सा क्वेश्चन था, आसान. तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आ गई. ओके, नाउ एक क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन देखते हैं. इस पे ये इंपॉर्टेंट है. सो a person starts from a place A to B and travels with speed 40 km per hour. A to B he went with speed 40 km per hour and he returns from B to A with a speed of 60 km per hour. He returns with a speed of 60 km per hour. Find average speed and average velocity. Okay. A से B तक गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B से A आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी. कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट फॉर एवरेज स्पीड. फर्स्ट सॉल्यूशन विल डू. ओके, let distance is d, distance between A and B is d. let b. हमारा एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन याद रखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने t को लेट किया था, यहाँ मैंने d को लेट किया है. ठीक है, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पर d सेम है. लास्ट केस में क्या था? t सेम था. ओके, इसलिए टोटल डिस्टेंस अगर आप देखें तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस कितना हुआ? d. हमने a और b के बीच का डिस्टेंस d माना, तो यहाँ से आ गया d. वो रिटर्न आया तो डिस्टेंस कितना हुआ? d. यहाँ से आकर डिस्टेंस हमने d माना है. लेट डिस्टेंस d बिटवीन A एंड B. डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है? बिटवीन A एंड B इज d. ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? पहले केस में d, दूसरे केस में भी d. एंड टाइम t1 प्लस t2, मतलब पहले टाइम t1 बाद में t2. क्या टाइम सेम लगेगा? आप खुद सोचिए यार. पहले 40 की स्पीड जा रहा, बाद में 60 की स्पीड जा रहा, टाइम तो सेम लगेगा नहीं. इसलिए मैंने टाइम को लेट नहीं किया. टाइम हमारा क्या है? t1 t2. b तो सेम था. टाइम t1 t2. अब देखिए सेम हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, टाइम ऊपर आ गया, स्पीड नीचे आ गया, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. टाइम को हम डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं. ठीक है, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड. देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं. d फर्स्ट केस, सॉरी उसको d प्लस d कितना आ गया? 2d. t1 टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. फर्स्ट केस में टाइम कितना लगा? फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना था आपका? d. वेलोसिटी या स्पीड कितना है आपका? 40, d by 40. सिमिलरली t2 कितना हो गया? d by 60. देखिए स्पीड का फॉर्मूला फिर से हम वही बात करते हैं. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस d प्लस d 2d
टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। पहले केस में टाइम कितना लगा, d/40 डिस्टेंस बाय स्पीड, दूसरे केस में डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड। नाउ d कॉमन अगर आप देखें तो d कॉमन आगे कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1/40 प्लस 1/60। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम अगर आप लेंगे इसको ऊपर कर दें तो ये आ जाएगा 2 × 40 × 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60। चेक कर सकते हैं, दिस विल बी 100, दिस विल बी 4800/100, प्रोडक्ट बाई सम एंड ऑल, ये कट गया। एवरेज स्पीड आपकी क्या आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, दिस इज 40 60, 40 60 100, 100/2 50। आपका आंसर आना चाहिए था 50, बट आपका आंसर क्या है 48। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा कि हम एवरेज का सिंपल एवरेज दिस प्लस बाई 2 लास्ट क्वेश्चन में काम आया था, बट इसमें काम नहीं आया। क्यों नहीं आया, वही तो देखना है। सो रीजन मैंने जो कहा कि हमेशा दिस प्लस दिस बाई 2 नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है, इसलिए नहीं चलता, ठीक है। लेकिन बेसिक प्रोसेस हमारा उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है। प्रोसेस आपको याद रखनी है। प्रोसेस क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस हमने लेट किया, एक साइड का डी लेट किया, दूसरी साइड का डी होगा ही। टाइम इस केस में अलग था, टाइम अलग था, सिंपल सा प्रोसेस है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, स्पीड क्या आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। चेक कर सकते हैं आप ऑप्शन, देखिए मिनिमम स्पीड 40 है, मैक्सिमम स्पीड 60 है, एवरेज हमेशा इनके बीच में ही रहेगा। आप 40 से कम या 60 से ऊपर नहीं जाएगा, 48 आंसर, ओके। तो नॉट 50, 48, क्लियर है, दिस इज एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज वेलोसिटी, what is average velocity? What is velocity? Displacement by time, okay. Second solution, velocity displacement by time. Now here and here, what is displacement? Displacement is 0. What is average velocity? 0. जहां से वो शुरू हुआ वापस वहीं पे आ गया, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। इस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं है। पहले वो इस डायरेक्शन में गया है, वापस वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन जहां पर चेंज होगी वहां पर वेलोसिटी और स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है, इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं है। तो दोनों सिमिलर एग्जांपल्स थे, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से एक हमें जनरल चीज पता लगती है, जो कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी बार ये पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में, जेई में काफी बार आया हुआ है, जेई नीट में। सो इससे आपको एक चीज जनरलाइज आप कर सकते हैं, व्हेन 2 स्पीड गिवन, सपोज 2 स्पीड, एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, इफ टाइम इज सेम टाइम इंटरवल्स, वी कैन से मीनिंग v1 स्पीड से लेट t टाइम गया, तो v2 स्पीड से भी t टाइम में ही अगर जा रहा है, सेम टाइम डिफरेंट स्पीड, सो एवरेज स्पीड विल बी this plus this by 2, same time, this plus this by 2. If distance is same, v1 speed d distance, v2 speed d distance, then average speed will be 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. It was the last formula इधर जो हमने लिखा था, you can see, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, this will be 2 v1 into v2 divided by v1 plus v2. This will be average speed if distance is same. ये फॉर्मूला से याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ में टाइम बहुत कम होता है, कम टाइम में अब फटाफट सोचना होता है, फटाफट या फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं है। सपोज आपसे कहा जाए कि टोटल डिस्टेंस का 2/3 डिस्टेंस इस स्पीड के साथ एंड 1/3 डिस्टेंस दूसरी स्पीड के साथ, ओके, 2/3 1/3 डिस्टेंस इज नॉट सेम, हाउ यू विल कैलकुलेट। सो हमें फिर से प्रोसेस पे आना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके काम कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं, यू शुड नो द प्रोसेस, अदरवाइज
सबके लिए तुम्हारे लिए फैक्टर याद करने पड़ेंगे, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। प्रोसेस आप याद रखेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन सॉल्यूशन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा और आपको ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा फॉर्मूले ज़्यादा मतलब चेक करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला वैसे याद नहीं रखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब टाइम सेम हो तब बाई 2 चलेगा, लेकिन डिस्टेंस सेम हो तो बाई 2 नहीं चलेगा, ये चलेगा। क्लियर है? These are 2 formula for average speeds.